السلام علیکم خواتین حضرات، خبرناک میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت 50,000 فٹ کی بلندی پہ خودکشی کرنے والے ہیں۔ ان جیسی لڑکیاں غلطی سے ایئر لائن میں بھرتی ہو کے ایسا جملہ بول کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی کیریئر تباہ کر دیا۔ خواتین و حضرات، میری زندگی ایک بند مٹھی تھی، بند گلی تھی۔ ایک بات بڑی قیمتی ہے کہ میری زندگی کے بہت سے ایسے پہلو ساری دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے، چھیتی کریا کرو، انہوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوندا۔ دانشور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے۔ سر کچھ بولیے۔ میں تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ وہ کیوں نہیں بول دے؟ کیڑا تہاڈے سینے 'چ خزانے دا راز پھسیا ہے؟ خزانے دا راز نہیں، سینے 'چ بلغم پھسیا۔ سر کچھ بولیے۔ وہ کچھ بولو، خدا لا واسطہ، جو لگدا جویں گنگا پکنک تے آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جس منڈیر پر بیٹھا اڑنے سے پہلے ہی شکار ہو گیا۔ تے تانوں کنے کہیا سی گلیل دے اگے بیٹھو؟ سر آر یو جوکنگ؟ نو جوکنگ، ہجے بھی پسلیاں 'چ شرلے پھسے نے۔ شرلے ہون دیا منگیترا۔ سر یعنی کہ آپ کی پہلی محبت ہی کامیاب ہو گئی جو کہ اب تک چل رہی ہے؟ جی۔ سر اتنی مایوسی سے جی؟ الجھے سلجھے انور۔ سر یہ وہی بک ہے نا جو آپ کی وائف نے لکھی ہے؟ یقیناً میری وائف ہی مجھ پر لکھیں گے، اس کی وائف تو مجھ پر نہیں لکھیں گے، اتنی فرینکنیس ہی نہیں۔ سر چھوڑیں، آپ پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نائلہ کیانی موجود ہیں۔ دنیا میں 14 چوٹیاں 8,000 میٹر سے زیادہ بلند ہیں، جن میں سے 5 پاکستان میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک گشا برمٹو انہوں نے سر کی ہے۔ خدا نے آپ کو دراز کا عطا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 8,000 میٹر سے بلند ہی رہیں۔ گڈ ٹو سی یو۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ پاکستان کی پہچان ہے۔ لہنگا پہن کے اتنی ہائٹ پہ جانا، ہاؤ ڈیئرنگ۔ یہ چوٹی تے کسی دی تیل مہندی سی؟ میری ہی تیل مہندی تھی، میری خود کی شادی تھی، اور وہ ڈریس میں پہن کے نہیں گئی تھی، وہیں پہ پہنا تھا میں نے۔ نہیں تو 8,000 میٹر سے بلند مقام پر تو ڈریسنگ روم میرا نہیں خیال کہ نہیں، وہ ایکچولی بیس کیمپ پہ تھے، اور وہاں پہ ہم لوگ ٹینٹس لگا کے وہیں پہ سوتے ہیں، وہیں پہ چینج جو کرنا ہو وہیں پہ ڈریس چینج کر کے یہ تقریب ہوئی تھی۔ تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ لوگ بڑے بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں، مگر اتنا ایڈونچرس میں نے آج تک کوئی دیکھا نہیں جو 6 ماہ کا بچہ چھوڑ کر چوٹی سر کرنے کی چل پڑے۔ اس ایڈونچر کی کوئی خاص وجہ؟ میرے ریزنز تھے کہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہے گا، اور جب وہ بڑے ہوں گے تب میں ان کے میرے لیے بھی ان کو چھوڑ کے جانا مشکل ہوگا، اور وہ ان کو پتہ ہوگا کہ ماں نہیں ہے گھر پہ۔ یہ ایک ریزن تھا، اور دوسرا خود کا بھی پیشن تھا کہ ابھی ینگ ہوں، ابھی کر لو۔ ابھی ینگ ہو کا مطلب کہ اگر میں 6 ماہ یا سال رک جاؤں تو سال بعد میں بوڑھی ہو جاؤں گی، سال سے پہلے چوٹی فتح کر لوں۔ بالکل یہ بھی ریزن ہے۔ یا آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ میری بچی چھوٹی ہے اور قدرت میری حفاظت کرے گی، میں بخیر و عافیت ریکارڈ اپنے نام کر کے آ جاؤں۔ نہیں، ریکارڈ نام کرنے کا نہیں سوچا تھا، بس یہ سوچا تھا کہ شوق تھا کہ پہاڑ پہ جاؤں، چوٹی کے ٹاپ پہ جا کے دیکھو کیا ویو کیا ہوتا ہے۔ پہاڑ کی ٹاپ پہ کیا ویو دیکھا؟ وہ اتنی سردی تھی کہ ویو انجوائے نہیں کیا، لیکن سب چائنا سائڈ نظر آ رہی تھی، انڈیا کی پیکس نظر آ رہی تھی، پاکستان کی طرف والی پیکس نظر آ رہی تھی۔ بہت خوبصورت تھا، لیکن بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی تھی کہ جلدی کچھ جو پلان کیا تھا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، پکچرز لے کے جلدی سے نیچے اترنے کا۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا ہوں اتنے لمبے عرصے کے لیے آپ چوٹی سر کرنے چلی گئیں اور چھوٹی
सी बच्ची छोड़ के चली गई. पीछे बच्चे के डायपर कौन चेंज करता हो? बच्चे के अब्बा ही चेंज कर. यानी आप डायपर चेंज करने के डर से चोटी पे चली गई. नहीं, ये वजह नहीं है, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट की. कशबरम 2 ही क्यों? इसलिए कि जो टीम थी मेरे साथ वो उन्होंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ था गशबरम 2, और गशबरम का मतलब है खूबसूरत पहाड़, तो उसको देखो तो बिल्कुल टॉप से पिरामिड की तरह लगता है. तो बस शौक पैदा हो गया कि इसके ऊपर जाना है. इस तो पहाड़ आपके के साथ टीम में कितने लोग मौजूद थे? 3 फास्ट बॉलर और 2 लेग स्पिनर. 2020 खेडन चले थे, इंक्लूडिंग मी 4 लोग थे. और उनमें सरवास खान जो कि काफ़ी फेमस माउंटेनियर हैं, अली रज़ा सतपारा जो कि एक और हीरो हैं जिनको अभी रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और एक और सुहेल सखी, तीनों मेरे साथ थे. और इन तीनों मतलब बहुत अच्छी टीम थी. इन्होंने रो फिक्सिंग में भी हेल्प की जो कि यूजुअली पाकिस्तान में कॉमन नहीं है. पाकिस्तान में यूजुअली नेपाली आके रो फिक्सिंग करते हैं, लेकिन मेरी टीम ने 2 कैंप्स की रो फिक्सिंग की. पहाड़ सर करने का शौक आपको बचपन से था? पहाड़ देखने का शौक बचपन से था, लेकिन पहाड़ सर करने का या बेस कैंप जाने का वो 2018 में स्टार्ट हुआ था. 2018 में मैंने K2 बेस कैंप ट्रैक किया था, गोंडोगोरोला पास क्रॉस किया था, और उसके सीधा बाद ही उसके 2 साल पहले से मतलब मैं एक चोटी सर करने का प्लान कर रही थी. तो फिर ये गशबरम 2 का प्लान बना. नहीं तो इसकी तो कोई ख़ास ट्रेनिंग भी होती होगी ना? ऐसे तो नहीं कि जैसे मैं इस उम्र में चल पड़ूँ. आप इस उम्र में भी वैसे अगर चाहें जा सकते हैं, ट्रेनिंग करके भी जा सकते हैं. ट्रेनिंग मैंने पहाड़ पे ही ली थी आइस क्लाइंबिंग की, तो जो मुझे मेरे उस्ताद थे साथ वो बता रहे थे 100% उसी तरह इंस्ट्रक्शंस फॉलो की. कभी ऐसे हुआ किसी ख़तरनाक मुहिम के दरमियान को बड़ा हादसा होते होते बच गया हो, या खुदा ना करे हो भी गया हो, कोई लिपस्टिक विपस्टिक गिर गई हो? अच्छा, तो मुझे याद आए, एक मेरे साथ जो साथी क्लाइंबर थे वो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो स्लिप हो गए. तो वो काफ़ी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो काफ़ी नीचे स्लिप होके गिरे. लेकिन लकीली जो उस्ताद थे हमारे, उन्होंने सेफ्टी उसकी ऑलरेडी रस्सी में डाली हुई थी. तो वो अगर रस्सी नहीं होती सेफ्टी में तो वो ट्रेवस में गिर के उनको कुछ भी हो सकता था. तो ये शुरू में ही ऐसे हुआ था. तो मैंने जब उसको देखा, ओबियसली उसने अपनी गलती से सीखा और मैंने उसकी गलती से सीखा, और उसके बाद हमने मेक श्योर किया कि कोई छोटी सी भी मिस्टेक नहीं हो. उसके अलावा दूसरा ये हुआ था कि मेरा एंड पे मैंने बहुत ज़्यादा कोई और पिक्चर्स और वीडियोस नहीं ले रहा था, तो मैं अपने मोबाइल से सब की अपनी पिक्चर्स और वीडियोस ले रही थी. और जब नीचे आते हुए तो वो मोबाइल मेरे पॉकेट से गिर गया. तो वो मुझे उसका ऑलमोस्ट हार्ट अटैक होने वाला था, मतलब गिरे बगैर, क्योंकि उसमें समिट की पिक्चर्स भी थी. तो वो फिर लकीली सरबाज खान जो मेरे साथ थे उन्होंने नीचे जाके बड़ी मुश्किल से ढूंढा, और बिल्कुल ऐसे बर्फ में पड़ा हुआ था. बाजी पहाड़ ते कई रस्सियां लगियां होंदियां ने, तुसी अपनी रस्सी किस तरह पहचानते हो? तुसी बकरियां पालते रहे हो? नहीं, बकरियां नहीं पाली, लेकिन हमें पहले से बताया गया था कि कौन सी रस्सी है, तो हमें पूरा फोकस रखना पड़ता है कि गलत रस्सी पे गलत रस्सी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वाकई ही ये बात ठीक है कि गलत रस्सी कुछ लोग जो यूज़ करते हैं वो उनके एक्सीडेंट्स भी होते हैं. जब हर साल जब मुहिमजू जाते हैं, माउंटेनियर्स जाते हैं, तो वो रस्सी फिक्स करते हैं, तो वो अपने साथ रस्सी नीचे उतार के नहीं लाते. तो K2 पे ये बहुत बड़ा मसला था, इसीलिए लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट हुआ था गलत रस्सी यूज़ करने की वजह से, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता माउंटेनियर्स को कि कौन सी रस्सी यूज़ की जाए. तो ये भी एक काम है जो करना है कि रस्सियाँ पुरानी उतारनी है ताकि हर साल नई रस्सी यूज़ की जाए और माउंटेनियर्स कंफ्यूज नहीं हो. तो आप भी कोई रस्सी लगा कर आई वहाँ पर? लेकिन इस दफ़ा हमारी टीम ने बहुत हिम्मत की और पाकिस्तानियों ने G2 पे अपना नाम रोशन किया रस्सी फिक्स करके. मैं तो चोटी ते गया, मैं तो रस्सी नहीं मन्नत दा धागा बनना कि दानश्वर साहब छेती बोल पिया कर. अच्छा, क्लाइंबिंग के दौरान कुछ ऐसी जगह भी आती है जहाँ रस्सी मौजूद नहीं होती, तो फिर वहाँ कैसे क्लाइंब करते हैं? और जहाँ रस्सी मौजूद होती है वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है या रस्सी के बगैर? रस्सी के साथ भी जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऑब्वियसली इस ईजियर कि रस्सी जब नहीं होती. तो गशबरम 2 पे ये था कि लास्ट के 300-400 मीटर पे रस्सी नहीं थी. तो वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि टेक्निकल क्लाइंब हम सब सेफ्टी रोप में थे, आपस में जैसे आपने बोला रस्से बांध के गए थे. और
ٹیکنیکل کلائم کر کے جانا تھا، تو وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اگین اس میں اگر ایک بندہ گر جاتا ہے تو سب کا رسک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ رسے کے ساتھ کلائم کر رہے ہیں تو دل لگانے کے لیے گنگناتے بھی ہیں کبھی، جیسے ایک رسہ آہا آہا دو راہ، کچھ ایسے کرتے کرتے ہنستے ہنساتے چڑھتے چڑھتے. گنگنانا تو اس ہائٹ پہ بہت مشکل ہے، کیونکہ سانس بھی بڑی مشکل سے آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہماری ٹیم میں علی رضا ستپارہ تھے جو کہ انہوں نے ہمیں اتنا ہنسایا کہ ہماری ٹیم بس ہنستے ہنستے جا رہی تھی، اور سب لوگ ہمیں دیکھ کے جیلس ہو رہے تھے کہ یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں، ہم لوگ اتنا ٹینشن میں ہیں مشکل سے، اور یہ بس ہنسے جا رہے ہیں. میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ چوٹی سر کرتے ہوئے آپ کو صرف ایک ہی فکر لاحق تھی کہ ہائے مر گئی، یہاں تو سگنل ہی نہیں آ رہے. یہ صرف چوٹی پہ فکر نہیں تھی بلکہ پورے ایکسپیڈیشن پہ فکر تھی کہ سگنل کیوں نہیں آ رہے ہیں. لیکن وہاں پہ سگنل ایکچولی K2 بیس کیمپ کے پاس آتے ہیں، گشبرم 2 کے پاس نہیں آتی، تو 1-2 دن ہمیں واک کر کے K2 بیس کیمپ کے پاس جا کے اپنی فیملی سے بات کر کے واپس آنا پڑا تھا. واہ، گشر کے سامنے شگاف کے پاس کوئی چلتا ہے کیا. اچھا نائلہ، ہمارے ہاں ہائی الٹیٹیوڈ گائیڈز جو ہیں ان کی اتنی پذیرائی کیوں نہیں ہے؟ ان گائیڈز کا ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. الٹیٹیوڈ سوری، نہیں، ایسی بات بالکل نہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. بیسکلی پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملا، اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا. ہم پہاڑوں کی سرزمین ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں پہاڑ سر کرنے. بالکل. لیکن لوگوں کو، پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کون کون سے پہاڑ ہیں، 8000 سے اوپر پہاڑ کی کیا سگنیفیکنس ہے. تو اس لیے اس کو اتنا زیادہ فوکس نہیں دیا گیا. نیپال میں شرپاس کو بہت فیسلٹیز ہیں، ان کی انشورنس بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی پیمنٹ جو ہے وہ کافی اچھی ہے. یہ بھی سپورٹس ہے. بالکل. اور لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سپورٹس ہے، اور اس سپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری گزارش ہے ان میں سے بھی کسی کو وزیر اعظم بنایا جائے. آپ 38 کنٹریز وزٹ کر چکی ہیں، کس کنٹری کی بیوٹی نے سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا آپ کو؟ ساروں میں سے بتائیں کون سی والی 38 میں سے کون سی والی بیوٹی نے آپ کو زیادہ اٹریکٹ کیا؟ سر وہ میں نے جی پاکستان کی بیوٹی نے سب سے زیادہ مجھے امپریس کیا. 38 ممالک گھومنے کے بعد آپ کو جی بی کا خیال آیا اور پھر ہنسا رک گیا. انفارچونیٹلی آئی تھنک یہی کچھ سال پہلے تک ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کتنی بیوٹی ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا سے، ٹی وی چینل سے، آپ جیسے آپ کے پروگرام ہے، اس کے تھرو آہستہ آہستہ پتہ چلا پچھلے کچھ سالوں میں کہ پاکستان کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. مجھے خود اندازہ نہیں تھا، یہ کچھ 3-4 ماہ پہلے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں بہت اچھا، کبھی آپ فراسٹ بٹن ہوئی ہیں گشبرم 2 پر؟ جب ہم سمٹ پش کے لیے جا رہے تھے تو ہماری پوری ٹیم کے ایکچولی ہاتھ اور پاؤں بہت جل رہے تھے. تو وہ اس میں رسک ہوتا ہے فراسٹ بائٹ کا. لیکن ہم لوگ دیر سے نکلے تھے، 2 بجے صبح کے نکلے تھے، تو 3-4 گھنٹے میں سورج نکل آیا تھا، تو اس نے کافی ہیلپ کی تھی. تو شکر ہے ہمارا فراسٹ بائٹ نہیں. یعنی ٹھنڈ اتنی ہے کہ آپ اگر خدا نہ کرے گلوز اتر گئے تو فوراً ہاتھ اٹیک ہو جائے. باجی ایڈی اونچائی تے اتنی ٹھنڈ ہے، اپنی رضائیاں تے مونگ پھلی نال لے کے گئے. نہیں، دل میں آیا تھا یہ خیال کہ مونگ پھلی آ جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. کیانی صاحب، آپ نے باکسنگ بھی کی کافی، اور میں آپ کو نائلہ جی بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں تمام کیانیوں کو کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں. تو آپ باکسنگ بھی کرتی نہیں، اور زیادہ تر میں نے باکسرز چپٹے ناک والے دیکھے، تو پتہ چلا وہ احتیاطاً ناک کی ہڈی نکلوا دیتے ہیں. آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی تیکھی ناک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ایکچولی ناک پہ پنچز کم پڑے، اس لیے چپٹا نہیں ہوا ناک. آپ کو کبھی ناک پہ پنچ نہیں پڑا؟ ناک پہ پڑا پنچ، خون بھی نکلا، لیکن کم پنچز پڑے، اس کی وجہ سے ناک سیف ہے. بچت ہوگی. شکر ہے خدا کا یہ باکسر نہیں تھی. ان کا تو ناک ہی اتنا بڑا ہے، انہیں پنچ پڑنا ہی ناک پر تھا. جب پیدا ہوئی تھیں تو مبارکباد تھی کہ مبارک ہو گھر، ناک پیدا ہوئی ہے ساتھ چھوٹی سی بچی کی. اسی لیے آج ان کو خبر ناک میں رکھا گیا. ناک کی ڈاگ ہے ساڈا ناک کیا گیا. اچھا نائلہ، یہ بتائیے گشبرم 2 سر کرنے کی فیس کیا ہے؟
تو परमिट फीस होती है जो यूजुअली फॉरेनर्स पे करते हैं, पाकिस्तानियों से कोई परमिट फीस नहीं लेते। परमिट के बगैर भी इस शोल में कितना खर्चा आ गया आपका? मेरा 23 लाख खर्चा आया था। 23 लाख। तो वापसी तो बटेगा कुछ नहीं। 23 लाख, फिर तो सिर्फ स्मगलर ही चोटियां सर कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्सपीडिशन में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया? सबसे ज़्यादा इंस्पायर मैं अली रज़ा सतपारा से हुई हूँ, जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं। उन्होंने 8,000 की 16 दफ़ा पीक सर की हैं, जो कि किसी ने भी पाकिस्तान में नहीं की। तो वो ऐसे हीरो हैं जैसे हम, मतलब क्रिकेट में इमरान खान और वसीम अकरम है, वो हमारे लिए माउंटेनियरिंग में है, तो वो उसका पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है। तो वो हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में उन्हें भी लोग जानें और उनको पता चले कि ये इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। सर, नाइला सिर्फ माउंटेनियर नहीं, स्काई डाइवर हैं, सी डाइवर हैं, पैराग्लाइडर हैं। मुझे तो यकीन है स्क्रू ड्राइवर भी। हमारे यहाँ मनोड़ा है, आपने नाम सुना होगा, कराची में। वहाँ 18 समंदर में फेंकें तो गोताखोर निकाल के ले आता है। आप ऐसा करतब भी कर लेती हैं? ट्राई नहीं किया, लेकिन करूँगी। आपने मुझे अच्छा अंदाज़ा आइडिया था। जहन में डाला है। अच्छा आइडिया है। हमारे यहाँ अगर ख़वातीन जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुझे लगता है ख़वातीन नहीं कर सकती, लेकिन उनको मौके मिलने चाहिए, उनको फैमिली सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन हर एक के पास 23 लाख रुपया नहीं होता ना। अच्छा नाइला, मीना बेग कमर्शियल्स में आ रही हैं, अगर आपको कोई फिल्म, ड्रामा या कमर्शियल से कोई ऑफर मिली तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ना नहीं बोलते, सोचूंगी ज़रूर। ਤੁਸੀਂ जो कहना उन्होंने मन्नी जाना जी। नहीं, मेरे दिमाग में आप आ रही थी कहते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। अच्छा ये अच्छा मैसेज है, करना चाहिए लोगों को। जाइए, ये आप कह रही हैं 6 माह का बच्चा छोड़ के पहाड़ों में निकल गया। वो उसकी लुक आफ्टर हो रही है, अच्छी से घर वाले कर रहे हैं, तो लेकिन चला। मिस बहुत कर रही हूँ उनको। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जहाज चला लेंदे जी। बिल्कुल चला रही थी। अच्छा, अगर हम मुआवजा करें कशबरम 2 और आपके मियाँ साहब यानी राजा साहब, दोनों में से मुश्किल कौन है? राजा साहब। राजा साहब, वो आज तक सर नहीं कर सके आप। हदीका कियानी यकीनन के दूर पार से कुछ ना कुछ ज़रूर लगती होंगी, क्योंकि तमाम कियानियों की कियानी एक ही है। तो मौसीकी से लगाव है? बिल्कुल है, बाथरूम सिंगर हूँ और मैं नीम क्लासिकल सुनती हूँ। नीम क्लासिकल, वाह। बिडे खान साहब को सुना है आपने? सुना है। सुना है? वो कैसे है? मैंने नहीं सुना। उन्होंने को पूछ रहे थे। मैं तो ऐसे फंसा रहा था। उस्ताद परोठे खान को सुना है? वो चंगे पले पहाड़ां ते जान वाले उन्होंने तवे ते ले गए जी। मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप सुनवा दें। आए तेरा सावन ऊँट चारदा सी। सहराई गीत है। महबूब कहता है, सावल ऊंट को वापस मोड़ो और अब आ जाओ। जी खान साहब तशरीफ रखिए प्लीज। जी। नाइला जी, कभी सहराओं में क्लाइंबिंग करने का शौक नहीं हुआ? अच्छा, सहरा में भी मैंने ट्रेनिंग किया है, क्योंकि जब हम लोग बर्फ़ पे चलते हैं तो पाँव कभी कभी पीछे आते हैं, तो रेत में भी वही होता है। तो मैं सहरा में ट्रेनिंग करके बर्फ़ में गई थी एक्सपीडिशन के लिए। अच्छा, तो फिर किस जगह पर की आपने ट्रेनिंग? मैंने दुबई के सहरा में की थी ट्रेनिंग। कदी ऐसा होए रेत गर्म होवे ताड़ा गिट्टा सड़ गया होवे? पाँव सड़े थे, गिट्टे नहीं सड़े थे। पहाड़ों में तो आप ख़ास किस्म के शूज़ में जाते हैं, तो सहराओं में किन शूज़ पे जाते हैं? शूज पे नहीं, शूज पे। वही जो शूज़ पहाड़ों में पहने थे वही मैंने सहरा में पहन के ट्रेनिंग की थी, क्योंकि शूज़ नए थे तो वो ट्रेनिंग करनी थी। तो वो ऐसा नहीं कि वही नए शूज़ पहाड़ पे लेके जाओ, अच्छा नहीं होता है, तो ट्रेनिंग पहले करके गई थी। मैं कहा जी जिवें रेत च शूज़ रवा करने पाउंदे हैं, इवें ही असीं गला रवा करने हैं। जिवें मोटरसाइकिल दी रनिंग नहीं पूरी करी दी, हाँ। शूज़ां दी भी करनी पैंदी। रवा करना क्या होता है? जैसे गुलकार हजरात पहले अपने गले को रवा करते हैं सुबह सुबह उठ के।
उसके बाद रिलैक्स होके इस तरह से बड़ा सुर, क्या बात है सर, बड़ा क्या सुर बात। लाया जे जवानी च वड्डा बाजा ते नहीं बजाउंदे रे बड़ा बाजा भी बजाया हुआ है। तदे थल्ले वाला बोल अद्धा काला ते अद्धा लाल। खान साहब कोई सहराई गीत पेश कीजिए ना, बड़ा लोच है आपकी आवाज में। हैं? क्या क्या लोच। जनाब लोच तो होने साढ़े वड्डे दरबारां ते गांदे हैं। अच्छा अच्छा वो दरबार हाँ। किते हो जे नजूमी काना तोता लेके फालां कटदे। अच्छा तो कौन से राजा के यहाँ गाया करते थे? जनाब खालिद राजा साहब के घर गांदे हैं। वो मैं राजा महाराजा की बात कर रहा जनाब उन्हां दी गल पे करना। ओ राजे महाराजे तो होंदे सन गावन दे शौकीन। आजकल दे राजे महाराजे पहाड़ सर पर करते हैं। बखाया रहंद खूंदा सी मौसीकी नूं पालदे पे। नहीं खान साहब तुसी सिर्फ अपने आप नूं पाल रहे जी। यूरोप अमरीका अफ्रीका एशिया किथे किथे नहीं गाया सा। ये झूठ बोलदा जे खान साहब इन्ने जोगा नहीं है। लो तुसी पूछो इन्हां नूं, मैंने सुनिया नहीं तुसी भला बिल्कुल सुना है, भला केड़े शहर? यूरोप में सुना है। हाँ यूरोप में सुने हैं। मैं तो किधरे गया नहीं, झूठ भी बोलेंगे। हूँ। यूरोप में रॉयल एल्बर्ट हॉल हाँ यहाँ परफॉर्म किया है। मैं गया जनाब अल्बर्ट हॉल। अच्छा। उसदे दरवाजा बंद आ, मैं मुड़ बाहर ही परफॉर्म करते आ गया। तो कितने लोग थे वहाँ? उथे जनाब 4 बंदे हैं लाल कोट पात ते ऐ राड जे फड़त खलोते हैं। वो गार्ड तो बकिंगम पैलेस के बाहर खड़े होते हैं। और यार गिया यार पूछो नैला जी दसो मैं तो गांदा पर तुसी लंगे नहीं मेरे को। बिल्कुल देखा भी आपको मैंने। ओ माशाल्लाह जी, मैं तो उथे गया नहीं ते ए झूठ पे बोलेंदे हो। नैला जी तुसी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। मलका एलिजाबेथ ने भी आपको सुना? लो मलका एलिजाबेथ मैनू नहीं मेरे नाने अब्बे नु सुनिया। मलका एलिजाबेथ ने ओ इनामात ओ शर्फियां ओ जेवरात ऐ दिते ने। दादे मेरे नु शौक सी मंग पत्ते दो उथे ही हार गया। आप कौन सी एलिजाबेथ की बात कर रहे हैं, अव्वली या पुरानी वाली? मैं तो मलका एलिजाबेथ दी अनु भाई सुन ला। मलका एलिजाबेथ ता हाथ धो के मेरे मामे दे पीछे पाए गई। एक मिनट मलका एलिजाबेथ हाथ धोकर आपके मामू के पीछे पड़ गई? हाँ हाँ जी उन्हों का शाही लेला खोल के नस गया सी। और मलका एलिजाबेथ दे ओ चाचे ने हो गई थी काली खांसी और लेला उन्नी यखनी पेज ठीक हो गया। माया ना मलका एलिजाबेथ आंदी भी मैं दुनिया चिक्को बाए तू है, मैं तेरे लिए ब्याह कराना और मैं किस नाल नहीं कराना। और सार झूठ बोलदा है, वो कदी तौंसे तो अगे नहीं गया, शाही खानदान तक के जी पहुंच गया। दसो जी इवें गल है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके मामू पे और मलका पे मूवी भी बनी थी। मामा मेरे तो खूच देख के मार गए थी, झूठ पे बुलेंदे। अच्छा मोहतरमा आपने मलका पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो अब्दुल पे आशिक हो गई और उनकी वीडियो वायरल हो गई। नहीं मैंने उनकी कोई वीडियो वायरल होने का नहीं बताया आपको। मैंने तो तारीख का एक फैक्ट बताया जिस पे मूवी भी बनी है इनके मामू पे। ओए अन्नू भाई मलका एलिजाबेथ बरामदे दे विच खड़ी है, उन्हें चिट्टी फ्रॉक पाई हुई है, सिर दे उत्ते कोहिनूर हीरा, हत्थां दे विच उन्हें गुलाब फद्दे हुए ने ते लम्मा सारा कलीन विछया उनदे उत्ते मेरे मामे दे पिछे बजदी जा रही। आई एक्सपोज कीता उस मूवी दे विच स्लोमो दे विच जाते मेरे मामे दे कन दे कोल आंदी है। कुत्ते का पटा तू खोलिया बाहर लोगों के पहुंचे पारदा फिरदा है। खुदा दा नाल है प्यार ना रखे। तू चिकड़ वाली पंपी पा के कलीन ते फिरी जा रहे हैं। ओए सुन तो सही कितने प्यार नाल दिल दियां गहराइयां चो आके अब्दुल हांडी च मिर्चां बहुतियां पातियां मेरे कन्ना चो सेक निकलना शुरू हो गया। ओ नहीं सुन तो सही मलका एलिजाबेथ आप दे पूरे महल नु मुलाजमा नु माई बाप बहन भरावां नु टुकरा तकिया है। अब्दुल मेरे कपड़े पा के पूरे पहरेदार पीछे ला लेने। दसो जी नाला जी क्या सी कहना ही? बिल्कुल कहा था। मामा मेरा तो बोला सी झूठ पे बुलेंदे ने। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मलका एलिजाबेथ नहीं मलका विक्टोरिया थी जो कि इंडिया के शेफ अब्दुल की आशिक हो गई थी। बेसिकली वो उनके खाने की आशिक हुई थी और बाद में उन्हें अपने साथ इंग्लैंड ले गई थी। नायरा बेस कैंप तक जाते हुए कौन सा इलाका आपको बहुत खूबसूरत लगा?
बलतोरो साइड पे वो हुशे है, सियाचू, हुशबांग, ये तीनों इनमें ग्रीनरी है। ये तो ये अच्छी साइट्स हैं, वो बहुत खूबसूरत है। और समाजी नायला जी तो जदों भी ट्रैवलिंग करते ना मैनू सारा दे फोन करते ने भी खान साहब मौसीकी सिर्फ ताड़ी सुननी है। दसो जी फोन कर दे का नहीं? बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत तंग किया इनको मैंने। हाँ मेरे को तो फोन ही कोई नहीं, झूठ बोलेंदे। ये बाद में कोई खुद गुलामी करता है ये मोटा? सर मैं तो खुद हैरान हूँ कि इनके हर झूठ पे नायला जी हाँ हाँ क्यों कर रही हैं। इतने बड़े झूठ का मजाक क्यों उड़ाया जा सकता है? पहली ये सच बोले। सच बता, तेरा मामा लंदन की किस जेल में है? लो आधारी बात तो शादी हो जाती जेल ही घर हो जाता है। अच्छा खान साहब एक बात है जी, आपके इतने झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, मैं निकलती हूँ। मुझे बचा ले। किससे? मुझे अपनी फिल्म में ले ले। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? देखो तरीका है। सानू डरा ही दिता ही, तेरे वर्गी बिल्ली दुध पीन लग्या गड़वी च सिर फसा लेंदी। चल राकेश जी करके बैठ। मनहूस सारी रात से कंधा च वाजदी फिरदी है। आप हैं कौन? नवा बजट है। बहुत रातें काली की इस शौक की आप यारी में पसीना बहाया। सॉरी सॉरी। खून की कमी ना होती तो खून भी बहा देता। अल्लाह ना करे। एक अजीम फनकार बनने के लिए शौक का कोई मोल नहीं होता, फकत पाँव की धूल नहीं होता, इश्क जवानी की भूल नहीं होता। अखा खोल के वेख चौधरी, ए ओही कुड़िए जिदी वजह ना मैं कॉलेज चो निकले। पापा मैं सोनू से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। करो करो करो। चौधरी जे तू साढ़े दोवां दी राह च रोड़े अटकाए ते असी ओही रोड़े चुक के तेरी एलसीडी तोड़ दांगे। एलसीडी नहीं अकबर नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने पापा की मर्जी के साथ शादी करूंगी। करो करो करो। जे तेरा पापा ना मनिया ते मैं ओदी लत घोड़े दी लत ना बांधांगा, आपे जंगल च घड़ीसदा फिरेगा। प्यो नु मनाना या लाश तो लंघना ही? लाश तो लंघ रहे। मत्था जंप मारते लंगी प्यो दी मोछ ना उतर जावे। मोछ च इज्जत है। जे हुण जालिम समाज मेरे प्यार च आया ते मैं लत्ता मार दियागा, लत्ता मार दियागा, लत्ता मार दियागा। टांगे काट देना। पजामा नहीं पजामा नहीं। सर मेरी एक्टिंग कैसी लगी तानू? आप एक्टिंग कर रहे थे? कैसी लगी मेरी एक्टिंग सर, कैसी लगी? और आप? जी सर। और सर मैं कब से यही तो बताना चाह रही थी कि मेरी फिल्म की कास्ट है। कैसी लगी एक्टिंग? बहुत लाजवाब। मुझे डरा ही दिया। चौधरी जे तू मेरी हट मुझे चप्पल पहनने दे। रानू जी आप वहाँ तशरीफ रखें। शुक्रिया जी। भाई आपका ये चश्मा। थैंक यू। आइए। तो ये तूफान बदतमीजी आपकी वजह से बर्पा। सर तूफान बदतमीजी नहीं, ये इनका टैलेंट है। आप फिल्म बनाना चाहती हैं? जी सर। और ये सब आपकी कास्ट है? जी। तो वो पराठे खान क्यों बुलाया? सर वो मेरी फिल्म के प्लेबैक सिंगर हैं। स्टोरी क्या है आपकी फिल्म की? सर स्टोरी ही तो आपसे लिखवाने आई हूँ। सर आप जैसा जुमलाबाज, हीला साज, इंशा पर्दाज और अदब नवाज अगर फिल्म लिखे तो कमाल कर दे। हाथ दराज भी कह नाल। फिल्म लिखी नहीं, कास्ट पहले बुला ली। सर एक्चुअली ये इन्वेस्टर और है ना। ये कॉन्फिडेंस भी कि मैं ये फिल्म जरूर करूँगा। ये कोई तरीका नहीं है फिल्म लिखने का। सॉरी सर प्लीज, सर प्लीज लिख दें। नो। सर अब आप मेरी खातिर एक फिल्म नहीं लिख सकते? फिल्म तो मैं
लिख लूँगा, लेकिन मुझसे वो नहीं लिखा जाता। वो सर रोमांटिक सीन? नहीं, वो कड़ा 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 वो जो भंगरा? भंगरा नहीं, गड्डी नु धक्का, वो ठुमका, लक पतला मेरा चुकदा नहीं पार वे। आइटम सॉन्ग। आई सी वो याद आ गया। हाँ, आइटम सॉन्ग मुझसे लिखे नहीं जाता। सर वैसे भी मेरी स्टोरी में आइटम सॉन्ग की ज़रूरत नहीं है, मुझे थ्रिलर स्टोरी चाहिए, थ्रिलर क्राइम स्टोरी। थ्रिलर क्राइम स्टोरी? जी सर। पता है कितने पैसे लगते हैं ये बनाने सर में? पैसों के फिक्र छोड़ें, ये हीरो है ना, ये हमारी फिल्म के इन्वेस्टर भी हैं। ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 203 ਮਲਕਪੁਰ ਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਮੈਂ 2 ਖੋਤੇ ਤੇ ਤਰਾਏ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਤੇ ਆਇਆ। ये इन्वेस्टर भी है? सर इन्वेस्टर हैं इसीलिए तो हीरो हैं। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया है? सर मैं ये मूवी प्रोड्यूस कर रही हूँ। ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। जी बोलिए। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੱਤ ਚੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜੋ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। एक मिनट। हीरो घर में दाखिल होता है ਜੀ और बारिश की वजह से छत टपक रही। वो पलट के अपने बाप की तरफ देखता है। ਯੈਸ बदतमीज। हीरो पहले अपने बाप को सलाम क्यों नहीं करता? ਅਨਵਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੀਕਵੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। प्यो किथे गया? ਉਹ ਸਲਾ हीरो गलत घर में चला गया है, वापस उसको उसके घर में लेके जाओ जहां उसका बूढ़ा बाप है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਘਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ, ਪਿਓ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੀਕਵੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। सीन चेंज मत करो, अपना जहन चेंज करो, अपनी सोच चेंज करो, अपने कपड़े चेंज करो। ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। सर आपके पैसे हैं, मुझे जज्बाती नहीं होना। ਥੈਂਕ ਯੂ। बजट क्या है फिल्म का? कितने पैसे हैं आपके पास? ਪੂਰੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵਿਕਿਆ ਮੇਰਾ। 2.5 लाख में तो आपका घर बिका ना? ਹਾਂ तो मैं पूछ रहा हूँ कि पूरी फिल्म, एक शिफ्ट नहीं, पूरी फिल्म पर आप कितने पैसे लगा? ਸਰ 2.5 ਲੱਖ ਲਾਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। 2.5 लाख में ये फिल्म बना रहे हैं। जी सर 2.5 लाख। आपको पता है मैं कितने पैसे लेता हूँ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। हीरोइन कितने पैसे लेगी? ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦਾਂਗੇ। बैकग्राउंड म्यूजिक का कितना पैसा लगेगा? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੰਗੇ ਦੇਣੇ ਆ। आप फिर भी कॉन्फिडेंट हैं? यस 2.5 लाख में फिल्म बनाएंगे, जितने बच गए चैरिटी में दे दें, दे दांगे दे दांगे। इंसानियत की भलाई के लिए। तेरा हाल किन्ने कीता रिया जी, की होया? ਉਹ ਬਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਚਾਚਾ ਖਾਰੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਖੈਰ ਨੂੰ ਬੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ जी ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕੂ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। अच्छा, 2-3 हज़ार रुपया यानी वापसी का किराया भी नहीं। हाँ जी। सवारियां कितनी हैं? 1 2 3 4 ਤੇ